بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی گیلانی علاقے کی ایک مسجد میں امامت کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان بھی چلاتے تھے۔ ان کے ہاں جب 5 سال بعد جڑواں بچے پیدا ہوئے تو وہ اس وقت مسجد میں تھے۔ اس خبر پر آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اشک بار آنکھوں سے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے خوشی سے روتے چلے گئے۔ وہ جب گھر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ بیٹی کی پیدائش کے کچھ دیر بعد بیٹے کی پیدائش متوقع تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا تھا۔ دائی انہیں یہ بات بتاتے بتاتے خوف زدہ ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ سید صاحب دائی کی طرف سے کمر موڑ کر چپ چاپ اس کے بولنے کے منتظر رہے، تو وہ توقف کے بعد پھر سے بولنے لگی۔ بچی کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اچانک کمرے میں اندھیرا پھیل گیا اور ایسا لگا کہ جیسے ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے اور بہت تیز تیز سانس لے رہا ہے۔ میں نے فوراً دیا روشن کیا تو آپ کی زوجہ کے سرہانے ایک سایہ دیکھا، پھر وہ سایہ بچی پر جھکا اور اور ایک دم غائب ہو گیا اور آپ کی بچی نے اپنی آنکھیں گول گول گھمانا شروع کر دیں۔ میں ڈر کے اٹھ گئی۔ اتنے میں اس بچی نے ایک دم انتہائی بری طرح سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ مجھ سے اٹھائی نہ گئی، لیکن وہ اچانک ایسے خاموش سی ہو گئی جیسے کبھی روئی نہ ہو۔ میں اٹھ کر باہر آنا چاہتی تھی کہ کسی کو بلاؤں، لیکن گھر میں آپ کی زوجہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ باہر تیز بارش کے ساتھ جھکڑ چل رہا تھا۔ میں اس حالت میں آپ کی زوجہ کو چھوڑ کر ہمسائے میں بھی جا کر کسی کو مدد کے لیے بلا نہ سکی۔ اسی اثناء میں آپ کی زوجہ کو دوبارہ سے درد ذہ شروع ہو گئی، تو میں اللہ کا نام لے کر دوسرے بچے کی ڈلیوری میں مشغول ہو گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں نے چاروں قل اور آیت الکرسی کا حصار آپ کی زوجہ کے گرد باندھا، اور جو ہی بچے کی ولادت ہوئی تو اسے بیٹی سے دوسری طرف لے جا کر لٹا دیا۔ ایک دم سے لائٹ آ گئی، لیکن کمرے میں ہمارے علاوہ کسی تیسرے کی موجودگی مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ بس میں اللہ کے کلام کا مسلسل ورد کرتی رہی۔ ایسا کیس میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو سید صاحب نے ہنکارا بھرا اور سورہ بقرہ کا ورد کرنے لگے۔ پھر آہستہ سے کہا، خیر ہوگی انشاءاللہ، اور انہوں نے دائی کے ہاتھ مبارکی کے کچھ پیسے رکھے اور 2 جوڑے کپڑوں کے دے کر اسے عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ وہ کمرے میں آئے جہاں ان کی اولاد کی خواہش جسے انہوں نے ہر سجدے میں مانگا تھا آج ان کے سامنے بیٹا اور بیٹی کی صورت میں پوری ہو گئی۔ وہ انتہائی خوشی اور جوش کے ساتھ اپنے جڑواں بچوں کے پاس گئے، بسم اللہ کر کے اپنے لخت جگروں کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ دائی کی باتیں ان کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو غور سے دیکھا جو سکون سے آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ انہوں نے چاروں کل اور آیت الکرسی کا حصار باندھنے کی نیت سے جو ہی پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ بچی نے آنکھیں کھول دیں اور رونے لگی۔ انہوں نے اسے زوجہ کے قریب لٹایا جبکہ بیٹا پرسکون نیند سو رہا تھا، اور اسے لے کر اپنے بستر پر آ گئے تو بیٹی بھی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ سید علی گیلانی اپنے بستر پر بیٹھ کر فکر میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا اور خود پر اور اہلیہ بچوں پر پھونک مارنے لگے اور اللہ سے عافیت کی دعا بھی کرتے جاتے۔ سید صاحب نے پشاور کے صدر بازار میں جو گھر کرائے پر لیا تھا وہ ہندوؤں کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ 2 کمروں کا مناسب گھر اور کرایہ دیکھ کر انہوں نے اس میں رہنے کی حامی بھر لی۔ گھر مکمل بند تھا اور ٹرپل سٹوری تھا، جس کی فرسٹ گراؤنڈ پر سید صاحب اپنے خاندان کے ساتھ شفٹ ہو گئے، لیکن اوپر کی 2 منزلیں خالی پڑی تھیں۔ اوپر والی 2 منزلوں کو لوگ کرائے پر دیکھنے کے لیے آتے مگر رہنے سے انکار کر دیتے۔ سیکنڈ فلور پر ایک کرایہ دار صرف ایک رات ہی قیام کر سکا اور اگلے دن سامان چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ پلٹ کر اپنا سامان بھی وہاں سے اٹھانے نہ آیا۔ خدا جانے اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا تھا کہ وہ بتانے سے بھی قاصر تھا۔ مالک مکان بے حد پریشان تھا کہ اس کے یہ اوپر والے 2 پورشن نہ جانے کس بنا پر خالی رہتے ہیں۔ کوئی بھی کرایہ دار پہلے تو آتا نہیں، اور جو آتے ہیں وہ شدید گھٹن بدبو اور بے انتہا بے چینی کا ذکر کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ صرف فرسٹ فلور کرائے پر وہ بھی بہت عرصے بعد لگا تھا، جس کے کرایہ دار سید صاحب تھے، جنہوں نے یہاں پر کچھ نہ کچھ آتے ساتھ ہی محسوس تو کر لیا تھا لیکن بولے نہیں۔ وہ اللہ کے کلام پر چونکہ بہت یقین رکھتے تھے، اس لیے اپنی قوت ایمانی کی بدولت ڈرتے نہیں تھے، اور عبادت الہی اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگے کہ یہاں رہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس گھر کا کرایہ معقول تھا
वरना सदर में पहले तो घर मिलते ही नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो पहले 3-4 लाख की पगड़ी देनी पड़ती है, जिसे सैयद साहब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए कुछ मुआशी मजबूरी और दूसरा अपनी दुकान के नज़दीक ऐसे घर में रहना उनके लिए मजबूरी बन गया था। रमज़ान और ईद पर अक्सर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से वो कई बार रातों को दुकान पर ही रुक जाते और घर ना आते। ऐसे में बीवी को तन तनहा दूर दराज इलाके में घर कर लेके देना उन्हें कुछ मुनासिब ना लगा। इसलिए उन्होंने अपनी दुकान के नज़दीक ही घर ढूंढा, ताकि वो किसी भी इमरजेंसी में बआसानी घर आकर अपनी बीवी बच्चों को देख सकें। सैयद अली गिलानी को भी शुरू में बदबू और घुटन का शदीद मसला रहा। उन्हें लगा शायद सीवरेज लाइन का मसला हो, इसलिए उन्होंने कई सैनिटरी वर्कर यानी खाकरों बदल बदल कर मुआयना भी करवाया, लेकिन मसला ज्यों का त्यों रहा, जिससे उनका दिल बेतहाशा परेशान भी हुआ। दूसरा मामला घुटन का था। हालांकि इस घर का सहन कदीम रिहायशी तर्ज तामीर के नमूने पर बनाया गया था, और ये सहन खुला था और यू शेप में था, जिसके अंदर कमरे बने हुए थे। हवा का कुदरती जरिया मौजूद होने के बावजूद घुटन, दिल की तंगी और रोशनी के बावजूद शदीद वहशत मुस्तकिल रहती थी। सहन में पीपल का एक दरख्त भी लगा हुआ था और उस पर एक रस्सी का एक झूला भी लटका हुआ था, जिस पर एक काली बिल्ली अक्सर बैठी देखी गई। लेकिन जब से सैयद साहब ने तिलावत कलाम पाक को सुबह शाम मामूल के साथ पढ़ना शुरू किया, वो उन्हें वहां नजर ना आती। लेकिन कभी कभी झूला खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर देता, कि जैसे उसके ऊपर कोई आकर बैठा हो। हालांकि वहां पर कोई हवा भी नहीं चलती थी कि जिससे ये गुमान हो कि झूला उस वजह से हिलता है। इसलिए उन्होंने वो झूला उठाकर ऊपर बांध दिया। लेकिन ये बात उनके नोटिस में एक रात आई कि झूला झूल रहा है, और पीपल के दरख्त के झूले के पास आवाजों की मौजूदगी से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई एक नहीं बल्कि काफी सारे लोग मौजूद हैं। और जो ही वो कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आते तो आवाजें बंद हो जाती और झूला भी रुक जाता। लेकिन जो ही वो अंदर कमरे में जाकर चारपाई पर लेटते तो उन्हें फिर से झूला झूलने और तेज तेज बातों की आवाजें आने लगती। अपने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके उस पर कलाम इलाही पढ़कर फूंकते और फिर दिल में इस बात का शुक्र अदा करते कि उनकी जोजा सोई हुई थी और उन्हें इस बात का पता नहीं चल सका। वैसे भी उन्होंने ऐसी जो भी चीजें महसूस की उसका जिक्र वो भी बीवी से ना करते, बल्कि छुपा लेते कि मुबादा वो औरत साथ है, कहीं डर ना जाए। लेकिन जब उनकी जोजा अजीब सी बेचैनी और दम घुटने का जिक्र करती तो वे एकदम से बात बदल देते और उसे उनका वहम करार देते हुए उन्हें वजीफा पढ़ने के लिए देते। और ये यकीनन अल्लाह के कलाम ही की बरकत थी कि अब उन्हें शिद्दत से घुटन का एहसास ना होता। अलबत्ता ऊपर की 2 मंजिलों से अक्सर ऐसी आवाजें आती थी जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से फर्श को खुरच रहा हो, और ये आवाजें अक्सर रात को सन्नाटे में बहुत ज्यादा सुनाई देने लगती। सैयद अली गिलानी अक्सर ख्वाब भी परेशान कुन देखते कि जैसे कोई हिंदू खानदान यहाँ रहने पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा है, और वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे खानदान यहाँ पर आबाद हैं जो उनकी वजह से शदीद गुस्से में हैं। वो उन्हें अक्सर कहते कि ये हमारा मस्कन है और तुमने यहाँ आकर बहुत गलत किया, और इससे भी ज्यादा गलत काम जो तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, उसकी वजह से हम सब तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा तुम भी तकलीफ उठाओगे और उसका खमियाजा भी जल्द ही भुगतोगे। ये ख्वाब जब भी उन्हें आता वो पसीने में भीग जाते और उनकी आंख भी खुल जाती। हालांकि वो इतना पढ़ना पढ़ाना करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये ख्वाब आना कभी बंद ना हुए। बच्चों की पैदाइश के अगले दिन ही सैयद अली की नजर अपनी जोजा के बाजू पर गई, जहां एक गहरा लंबा कट लगा हुआ था जिसका खून अब तकरीबन खुश्क हो गया था। खुदा जाने ये कट रात को कब लगा। वो बाजू पकड़कर गौर से देखने लगे तो उनकी बीवी एकदम से जाग गई। उन्होंने इसके बारे में अपनी बीवी से पूछा कि ये कैसे लगा, तो वो भी एकदम से उठकर बैठ गई और अपने बाजू को गौर से देखने लगी। फिर अपनी कांच की चूड़ी को देखा कि शायद इनमें से कोई एक टूट कर लग गई हो। लेकिन सैयद अली गिलानी सोती हुई बेटी पर नजरें जमा कर बैठे रहे तो उनकी बीवी को तशवीश सी होने लगी। फिर वो खामोशी से उठकर टंक्चर लाए और पट्टी से लगाने के बाद बीवी को नजदीकी दही मरकज सेहत ले गए, जहां पर उनके बाजू पर टांके लगे और फिर कुछ मेडिसिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खरीद कर घर आ गए। कट लगने का यह सिलसिला तो चल ही पड़ा।
अब ये कट उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगते और हैरत की बात यह थी कि उन्हें कट लगते वक्त पता भी ना चलता, ना ही दर्द महसूस होता। लेकिन जो ही वो अपनी बेटी रानी को उठाती तो एकदम दर्द की टीसें उठना शुरू हो जाती। सैयद अली गिलानी के लिए यह मामला इंतहाई पुरअसरार सा बन गया था। जोजा के जिस्म को लगने वाले कट गहरे तो न थे लेकिन टांके लगते, लेकिन उन कट से रोजाना निकलने वाले खून की वजह से उनकी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। रंगत पीली सी पड़ गई, उनकी सफेद गुलाबी रंगत पज़मुर्दा सी हो गई और आंखों के गिर्द काले स्याह हल्के नुमाया होने लगे। सैयद अली के लिए दिन ब दिन हालात तशवीशनाक बनते जा रहे थे। उन्होंने अल्लाह के कलाम से मदद लेने का फैसला किया और मखसूस आयात का मुसलसल विर्द वो रात को उठकर शुरू कर देते, क्योंकि ये मखलूक जो जिन्नात की सूरत में उनके साथ रह रही थी रात को ही ज्यादा तंग करने लगी थी। ख्वाब से भी मालूम पड़ता था कि वो हिंदू हैं। सैयद अली गिलानी रात को नमाज तहज्जुद का भी एहतमाम करने लगे और रात के पहले पहर तक सोते, फिर वजू करके तमाम एहतमाम के साथ वज़ाइफ शुरू करते और बीवी के सराहने बैठकर बे आवाज पढ़ते ताकि उनकी नींद खराब ना हो। शुरू में ऐसा भी हुआ कि जो ही वो पढ़ने लगते तो उनकी बेटी एकदम उठ जाती और रोने लगती और किसी तौर चुप ना होती। तो उन्होंने एक तावीज़ चांदी के लॉकेट में डालकर बेटी के गले में पहना दिया, तो उसके बाद वो नहीं उठी। तो वो सुकून के साथ बगैर किसी परेशानी के अपने वज़ाइफ को मुकम्मल करते हुए बीवी बच्चों पर फूंकते रहते। नमाज तहज्जुद का वक्त हो जाता तो वो उस नमाज का खुसूसी एहतमाम करते और साथ ही साथ अल्लाह से भी मदद मांगते। जब से उन्होंने मखसूस वज़ाइफ का विर्द शुरू किया तो अब उनकी जोजा के जिस्म पर कट लगने बंद हो गए। अलबत्ता कमरे के अंदर शुरू में कुछ बेचैनी सी रही, कभी खिड़की झटके से खुल जाती तो कभी बल्ब जलना बुझना शुरू हो जाता, क्योंकि बीवी की बीमारी की वजह से उन्होंने किचन का आधा सामान कमरे में ही रख लिया था ताकि उन्हें खाना बनाने, बच्चों की सफाई सुथराई के लिए पानी गर्म करने या बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए बार बार किचन में न जाना पड़े। एक तो किचन उनके रिहायशी कमरों से काफी दूर बना हुआ था और दूसरा एहतियात का तकाजा था कि वो बच्चों को कमरे में अकेला छोड़कर जोजा का किचन में काफी देर तक काम करना मुनासिब नहीं था। और वैसे भी हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी और मासूम बच्चों के लिए तो कमरा गर्म रखना भी जरूरी था। यूं हीटर का मुतबादिल भी मुयस्सर आ गया। उनकी जोजा शुरू में इस सूरत हाल से काफी बददिल हुई, क्योंकि कमरे में काफी बखेड़ा पड़ जाता था जिसे समेटते समेटते काफी वक्त भी लग जाता। लेकिन इस घर में होने वाले पुरस्रार वाकयात की वजह से बच्चों को अकेला छोड़ने पर उनका दिल भी आमादा ना हुआ, तो वो फिर चुप सी हो गई। ऐसे में कई बार रात में किचन के बर्तन जमीन पर पड़े पड़े लुढ़कना शुरू कर देते या फिर खाने पीने की चीजें गायब हो जाती। उनकी जोजा सालन बनाने के लिए जब काम का आगाज करती तो प्याज टमाटर अपनी टोकरी में पड़े होने के बजाय अक्सर चारपाई के नीचे से मिलते या फिर अलमारियों से निकल रहे होते। अक्सर छुरी गायब हो जाती और वो काफी देर तक ढूंढती रहती और कई बार ऐसा होता कि चीज सामने पड़ी होती लेकिन नजर नहीं आ रही होती, तो ऐसा लगता जैसे नजरबंदी की गई हो। बर्तनों के चिक्के से प्लेटें और गिलास नीचे धड़ाम से गिर जाते तो वो डर जाती। सैयद साहब रोजाना ये सब मुशाहिदा करते और बीवी को तसल्ली देते और फिर आंखें बंद करके आयात का विर्द करते रहते। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में से ये पुरस्रार मामूलात रुक से गए तो उनकी सांस में सांस आई। लेकिन अक्सर मौसम साफ होने के बावजूद सहन में तेज हवाएं शदीद झक्कड़ के साथ चलती रहती, जो इंतहाई हैरान कुन बात थी। लेकिन सैयद साहब को ज्यादा हैरत ना होती, क्योंकि वो समझ गए थे कि इस घर में शैतानी कुव्वतों का बसेरा है और वो सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो बिला नागा अल्लाह का कलाम पढ़ते रहते हैं। इसी कलाम की वजह से ये मखलूक उन्हें कोई खास नुकसान पहुंचाने में अब तक नाकाम रही है। एक दिन उनकी जोजा ने बच्चों को सहन में हल्की हल्की धूप में जाकर लिटाया और खुद घर के काम करने लगी। सहन और बरामदा काफी गंदा हो रहा था। उन्होंने पहले जा बजा बिखरे पत्ते एक जगह इकट्ठे करके उन्हें कूड़ेदान में फेंका और फिर पानी का पाइप लेकर सीमेंट से बना पुख्ता बरामदा और सहन के फर्श को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। वो जो ही धोकर उठी तो देखा कि बरामदे और सहन में जा बजा सुर्ख रंग के छींटे से पड़े हुए हैं। वो देखकर इंतहाई हैरान हुई कि ये कैसे निशान है, हालांकि उन्होंने तो फर्श बहुत अच्छी तरह से धोया भी है और उस वक्त तो ये निशान नजर भी नहीं आए, तो अब ये कैसे निशान पड़े हुए हैं। उन्होंने तजस्सुस के मारे उन सुर्ख धब्बों को उंगली से छुआ और फिर अपने नाक के करीब लेकर आई तो शदीद बदबू का भभोका उनके नाक से टकराया।
तो उन्हें शदीद मतली हुई। फिर वो भाग कर पानी के नल के पास गईं और मल मल कर हाथ धोने शुरू कर दिए और साथ ही रोने लगीं। बार बार अपने हाथ धोने के बाद उसने अपनी उंगलियों को सूंघा तो उंगलियों से अब भी गंदी बदबू आ रही थी। फिर वो कमरे की तरफ भागी और अलमारी से लोशन निकाल कर अपने हाथों पर लगाया और बच्चों की जानिब गई और उन्हें उठाकर कमरे में लाई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सैयद साहब दिन को खाना खाने के लिए जब घर आए तो जोजा की गैर मामूली खामोशी देखकर पूछा कि सब खैरियत है। तो वो बुरी तरह से रोने लगी और फिर आज होने वाला वाकया पूरी तफसील के साथ सैयद साहब के इल्म में लाया। तो सैयद साहब के हाथ से नवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा और वो फौरन उठकर सहन में गए और गौर से सहन और बरामदे के फर्श को देखने लगे, जहां पर खून के सुर्ख छींटों के कोई निशान नजर न आए। उनके पीछे पीछे उनकी जोजा भी थी और ये देखकर हैरान रह गईं कि वहां पर अब कोई भी निशान मौजूद न थे। तो वो एकदम घबरा कर बोली, ये क्या माजरा है? अभी तो थोड़ी देर पहले ये पूरा सहन और बरामदा खून के सुर्ख छींटों से भरा हुआ था। बाखुदा मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पर वाकई इंतहाई बदबूदार खूनी छींटे मैंने देखे हैं और वो इतने बदबूदार थे कि मेरी उंगलियों से उनकी बू नहीं जा रही थी। वो बात तो सैयद साहब से कर रही थी, लेकिन पूरे सहन में घूम घूम कर फर्श की तरफ इशारा कर रही थी। सैयद साहब ने एकदम अपनी बीवी को शानों से थामा और कहा, मुझे यकीन है कि तुम जो भी कह रही हो वो सच है और ऐसा ही हुआ होगा। मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है, लेकिन आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या थी कि बच्चों को लेकर सहन में आओ? सैयद साहब की बात सुनकर उनकी बीवी एकदम से झुंझला कर बोली, क्या आखिर हम कोई कैदी हैं जो हर वक्त कमरे में बंद रहें? हमें कभी तो बाहर निकलना है। अभी बच्चों के कपड़े छोटे छोटे हैं जिन्हें मैं कमरे में बंधी तार पर ही डाल लेती हूँ, लेकिन आखिर कब तक मैं इसी तरह करती रहूंगी और हम कब तक अपने कपड़े मासी से धुलवाते रहेंगे? और आपकी इतनी आमदनी नहीं है कि हम मासी को अफोर्ड कर सकें। आखिर मुझे कपड़े धोने के लिए, घर के काम करने के लिए सहन और बरामदे में निकलना है कि नहीं? आज बच्चे छोटे हैं, कल वो बड़े होंगे तो क्या वो कमरे तक महदूद रह सकते हैं? हम कब तक उन पर पाबंदी लगाकर उन्हें बाहर सहन में नहीं आने देंगे? सैयद साहब अब बहुत हो गई, मैं फैसला कर चुकी हूँ। वो पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली गई। तो सैयद अली गिलानी इंतहाई परेशानी के आलम में कुछ देर वहीं खड़े रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ वो अंदर कमरे में गए। वो जो ही कमरे में आए तो उन्होंने आहिस्ता से अपनी जोजा से पूछा कि आखिर उसने क्या फैसला किया है। तो वो बोली, मैं मजीद इस घर में नहीं रह सकती। वो दो टोक लहजे में बोली, ये इंतहाई भारी घर है और मैं सिर्फ इसलिए चुप करती हूँ कि मैं आपकी परेशानी में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब सवाल मेरे बच्चों की जिंदगी का है और ये बात आप भी जानते हैं कि हमें बच्चे कोई साल ब साल नहीं मिले, बल्कि कई सालों की मनाजात और मुरादों के बाद मिले हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों पर कोई आंच आए या इन्हें कोई नुकसान पहुंचे। सैयद साहब, अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो यकीन कीजिए मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। सैयद साहब पर गहरी खामोशी तारी थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब वो करें तो क्या करें। उनकी जोजा भी एक हद तक बिल्कुल ठीक बात कर रही थी। उन्हें ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जोजा की तरफ देखा और कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं मकान ढूंढने की कोशिश करता हूँ और जो ही हमें कोई अच्छा माकूल किराए का घर भले एक कमरे का भी मिल जाता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। माकूल किराया? सैयद साहब, आप अब भी माकूल किराया देकर मकान लेने की बात कर रहे हैं? वो गुस्से से बोली, मैं तो कहती हूँ कि किराया जितना भी हो आप खुदारा अपने बच्चों की खातिर मकान लें। पैसों को ना देखें, पैसे तो हाथ का मैल हैं, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता बच्चों को कुछ हो गया तो यकीन कीजिए हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। सैयद साहब अचानक खड़े हुए और कहने लगे, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी डीलर से जाकर मिलता हूँ और उसको बताता हूँ कि वो हमें कोई घर लेकर दे दे। वो जाने लगे तो उनकी जोजा ने उन्हें आवाज दी कि खाना तो खा जाएं। वो कहने लगे कि नहीं, अब मेरी भूख मर गई है, मैं चलता हूँ, जाकर प्रॉपर्टी डीलर वाले से बात करता हूँ, फिर दुकान खोलने का वक्त हो जाएगा। सैयद साहब मेन बाजार में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पहुंचे और उन्हें एक दो कमरों के घर दिखाने की बात की। तो उसने कहा कि आज ही 2 सिंगल स्टोरी घर खाली हुए हैं, लिहाजा सैयद साहब प्रॉपर्टी डीलर के साथ उसी वक्त गए और जाकर वो घर देखाए, लेकिन किराया ज्यादा होने की वजह से बात न बनी। बार बार उनकी नजरों के सामने उनके बीवी बच्चे आने लगे तो उनके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें परेशान देखकर तसल्ली दी कि कल भी एक घर खाली होना है, इसलिए फिक्रमंद ना हो। सैयद साहब
प्रॉपर्टी डीलर का शुक्रिया अदा करके अपनी दुकान पर आ गए, लेकिन हर वक्त उनका दिल अपने बीवी बच्चों में ही अटका रहा। बीवी बच्चों के अलावा उनका इस दुनिया में था ही कौन। उन्होंने बचपन से ही अपने रिश्तों की जुदाइयां बर्दाश्त की थीं। उनके वालिद माजूर क्या हुए कि घर में फाका कशी उतर आई। फिर उनकी वालिदा घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए लोगों के घर बर्तन धोने का काम करने लगी। मुआशी मजबूरी ने उनकी वालिदा को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। उनके वालिद कुछ अरसा बीमार रहने के बाद फौत हो गए, तो गोया गमों के तूफान ने उनके घर का रास्ता ही देख लिया। वो इकलौते बेटे थे, उनका कोई बहन भाई न था। अम्मी काम पर जाती और साथ ही उनकी फिक्र भी उन्हें दामनगीर रहती। काम के बोझ और फिक्रों ने उन्हें बीमार कर दिया। कामकाज अब उनके बस में ना रहा, तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे सैयद साहब को दिल पर पत्थर रखकर मदरसे में दाखिल करवा दिया और खुद कुछ महीनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। सैयद साहब उस वक्त 13 साल के थे। वालिदैन की वफात ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। जिंदगी में ये भी कितनी अजियतनाक बात होती है कि इस भरी दुनिया में जब कोई भी आपका अपना ना रहे तो तन तन्हा जिंदगी गुजारने का ख्याल ही सवाने रूह बन जाता है। सैयद साहब अक्सर रातों को उठकर अपने दिल का गुबार आंसुओं में निकालते, क्योंकि दिन को उनके हमजमात और असातिज़ा के सामने वो रोकर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहते थे। वक्त गुजरता चला गया और वो आलिम फाजिल बनकर मदरसे से फारिग हुए और अपने असातिज़ा की मेहरबानी से उन्होंने यतीम खाने में एक लड़की के लिए रिश्ते की बात चलाई और यूं शाजिया उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत हवा का झोंका बनकर दाखिल हो गई। शाजिया जो खुद भी बचपन में ही यतीम हो गई थी। उन दोनों के हालात और दुख मुश्तरका थे, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे के साथ जहनी हम आहंगी में भी मुश्किल पेश न आई। वो यकजान दो कालिम में ढल गए। बस एक ही कसक उनकी जिंदगी में बे औलादी की थी, तो वो एक दूसरे को रोज ही तसल्ली देते रहते। बिलाखिर औलाद भी हो गई और उन दोनों की जिंदगी एक तरह से मुकम्मल और शांत हो गई। रात को जब वो घर पहुंचे तो उनकी जोजा शाजिया ने फिक्रमंदी से उनकी तरफ देखा, तो वो एकदम बोले, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो अफसुदा सी होकर चुप हो गई और खामोशी से खाना गर्म करने लगी। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर बाहर सहन में चहलकदमी करने के लिए गए, तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनके सर पर कोई मौजूद है। उन्होंने सर उठाकर देखा तो उन्हें कुछ नजर न आया, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे दूसरी तीसरी मंजिल से कई आंखें उन्हें देख रही हैं। अचानक उन्हें ऊपर वाले दो पोर्शन की लाइट्स जलती बुझती दिखाई देने लगी। हालांकि ऊपर वाले दो पोर्शन की बिजली का मेन स्विच मालिक मकान खुद बंद करके गया था और उसके बाद कोई ऊपर भी नहीं गया, तो बल्ब का जलना बुझना दिल को खौफजदा करने के लिए काफी था। वो अल्लाह का विर्द मुस्तकिल किए जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई बिल्कुल उनके सामने से गुजरा हो। वो एकदम पीछे मुड़े तो सिवाय मलगजे अंधेरे के सिवा उन्हें कुछ नजर न आया कि फिर बैरूनी दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो बुड़बुड़ाते हुए गेट के पास गए और पूछने लगे, कौन है? लेकिन कोई जवाब न आया और गेट मुस्तकिल जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। तो उन्होंने गेट खोल दिया, मगर बाहर कोई न था। उन्होंने सर निकालकर बाहर झांका तो गली खाली थी। उन्होंने दोबारा गेट बंद करके अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अब की बार दस्तक मध्यम सी थी। उन्होंने भागकर फौरन दरवाजा खोला, लेकिन बाहर पुरइसरार खामोशी के सिवा कुछ न मिला। वो गेट बंद करने ही लगे थे कि उन्हें अपनी पुश्त पर किसी के हाँफने जैसी आवाजें सुनाई दी। वो जो भी था उनके ही करीब आ रहा था। वो मुड़े नहीं, जाने क्यों उन्हें अपने कदम जमीन पर जकड़े हुए लगे। उन पर खौफ तारी होने लगा और हाथ कांपने लगे और फिर उन्हें अपने पीछे कुत्तों के गुर्राने और भौंकने की आवाजें एक साथ आने लगी। उनके बदन के तमाम रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़े तो उनके सामने एक खौफनाक अफरेद झूले पर टांगे ऊपर करके बैठा हुआ नजर आया। उसने घुटनों पर अपना सर रखा हुआ था। अचानक सैयद साहब ने चीख मारने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उनकी आवाज हलक से ना निकल सकी। उन्हें महसूस हुआ जैसे जिस्म में जान खत्म हो गई हो। वो वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनके पांव मन मन भर के हो गए। फिर अफरेद का झूला खुद ब खुद दाएं बाएं हरकत करने लगा, लेकिन उसके अंदर नशिस्त पर कोई फर्क न पड़ा। वो वैसे ही घुटनों पर सर दिए आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। सैयद साहब की जबान पर सूरह नास जारी हो गई। वो उसे पढ़ने लगे तो उनके जिस्म में हरकत हुई और उनके दिमाग ने भी काम करना शुरू किया।
वो भागते हुए बरामदे में आए और तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, और दरवाजा अंदर से बंद करने से पहले उनकी निगाह झूले पर गैर इरादी तौर पर गई तो झूला खाली था। वो दरवाजा बंद करके वहीं पर जमीन पर बैठ गए और गहरे गहरे सांस लेने लगे। उन्होंने अपनी जोजा को देखा जो बेफिक्री से सो रही थी, तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जोजा ने उन्हें इस हालत में नहीं देख लिया, वरना वो बहुत बुरी तरह से डर जाती। वो दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर बैठ गए और अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे कि अचानक उन्हें दरवाजे के बिल्कुल पास से बेतहाशा हंसने की आवाज आने लगी। वो बौखलाकर उठे और तेजी से अपनी चारपाई पर चढ़कर बैठ गए और खौफजदा नजरों से दरवाजे की जानिब देखने लगे। थोड़ी देर बाद ये आवाजें आना बंद हो गईं, तो उन्होंने शुक्र का सांस लिया। सुबह होते ही बगैर नाश्ता किए सैयद साहब प्रॉपर्टी डीलर के पास भागे भागे गए और उन्हें कहा कि वो जो मकान खाली हुआ है वो उन्हें दिखाएं। जब वो उस मकान के पास गए और किराया वगैरह मालूम किया तो उन्हें किराया और मकान दोनों ही मुनासिब मालूम हुए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। प्रॉपर्टी डीलर ने उसी वक्त मालिक के मकान से बात की तो वो भी मौका पर पहुंच गया, लेकिन उन्हें हैरत का शदीद झटका तब लगा जब मालिक के मकान ने मकान देने से इनकार कर दिया। उन्हें शदीद हैरानी हुई कि मकान खाली है और उसे किराए पर मालिक के मकान देना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो उन्हें इनकार कर रहा है, जिसकी वजह उन्हें समझ में नहीं आ रही। उन्होंने बेबसी के साथ प्रॉपर्टी डीलर की तरफ देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सैयद साहब को तसल्ली दी और फिर खुद मालिक के मकान से बात का आगाज किया कि आखिर वो क्यों ये घर किराए पर नहीं देना चाह रहा। तो मालिक के मकान ने कहा कि उसने घर को दोबारा से रंग रोगन करवाना है। इस मकान की हालत बहुत खस्ता हाल किराएदार करके गए हैं, इसलिए वो अभी इस मकान को किराए पर नहीं चढ़ाएगा। सैयद साहब ने उसकी बात पूरी सुनने के बाद कहा कि वो मकान का रंग रोगन खुद करवा लेंगे, उन्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मालिक के मकान ने दो टोक लहजे में कहा कि मुझे आपको मकान देना ही नहीं है। तो सैयद साहब और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इससे पहले कि प्रॉपर्टी डीलर उनसे कोई बात करता, मालिक का मकान वहां से चल दिया। सैयद साहब परेशानी के आलम में प्रॉपर्टी डीलर की तरफ देखने लगे। फिर एक ख्याल के तहत उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि अगर इस इलाके में कोई मकान खाली नहीं मिल रहा तो वो किसी और इलाके में देख लें, हम वहां भी जाने को तैयार हैं। प्रॉपर्टी डीलर ने हामी भर ली और कहा कि जो ही उन्हें कोई भी मकान खाली मालूम हुआ तो वो उनके इल्म में जरूर लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद एक अजीब व गरीब सिलसिला शुरू हो गया। वो जो भी खाली मकान देखते तो या तो मालिक के मकान ही मकान देने से इनकार कर देता या फिर मकान ही उन्हें पसंद ना आता। मकान ढूंढने के मामले में उनकी दुकान अब मुस्तकिल बंद रहने लगी, तो उनकी आमदनी पर भी इसका खासा बुरा असर पड़ने लगा। बिलाखिर उन्होंने थक हार कर मकान ढूंढने की कोशिश तर्क कर दी और दुकान को वक्त देने लगे, क्योंकि उनकी आमदनी का वाहिद जरिया यही दुकान थी और ये दुकान भी किराए पर उन्होंने ली थी। दुकान का किराया जरा सा भी लेट हो जाता तो मालिक के मकान बहुत बातें करता। इस वजह से वो अपने लगे लगाए रोजगार से गैर हाजिर होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे कि एक दिन वो आधी रात को अपने सहन में आए और रोने लगे, और फिर सर उठाकर उन्होंने ऊपर देखा कि तुम लोग जिसको भी मानते हो तुमको उसका वास्ता। वो बोले ही थे कि उन्हें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी सरगोशियां और आवाजें सुनाई देने लगी। हमें परेशान न करो, हम पहले ही यतीम और बेआसरा हैं, जमाने के बहुत सताए हुए हैं। हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन मुझे कोई मकान नहीं मिल रहा। मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए खुदारा मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ रहने दो। हम कहाँ सर छुपाएं? या अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है, तू इनके दिल में रहम डाल। ये कहकर वो सजदा रेज हो गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। आज उन्हें अपने इर्द गिर्द होने वाली सरगोशियां आना बंद हो गईं। उन्होंने ऊपर की जानिब निगाह की तो वहां पर मुकम्मल अंधेरा था। वो इंतहाई दुखी दिल के साथ अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़े और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका था। उन्होंने वजू बनाया और जाए नमाज डालकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। सैयद साहब और उनकी जोजा ने उसके बाद एक चीज महसूस की कि वो दिन और रात को किसी भी वक्त अगर सहन या बरामदे में जाते तो उन्हें कुछ भी ऐसा महसूस ना होता कि जिससे उन्हें डर लगे। अब किचन से उनकी कोई चीज भी गायब ना होती। ऐसा लगता था जैसे ये मखलूक अब उनके साथ मफाहमत के लिए तैयार हो गई है। तो उन दोनों मियाँ बीवी ने सुख का सांस लिया। अब उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले दो पोर्शन कभी भी किराए पर ना लग सके।
मालिक मकान ने कई बार मकान बेचने की कोशिश की, लेकिन उस मकान का सौदा भी ना हो सका। सैयद साहब ने अपने दोनों बच्चों की इब्तदाई तालीम का बंदोबस्त घर पर ही किया। फिर उन्होंने मजीद तालीम के लिए बेटे को तो मदरसे में दाखिल करवा दिया, लेकिन बेटी को वो घर पर ही तालीम देने लगे। एक दिन उनकी बेटी ने स्कूल जाने के बारे में सैयद साहब से बात की तो उन्हें बड़ी हैरानगी हुई और खुशी भी हुई कि उनकी बेटी पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने करीबी सरकारी स्कूल में बेटी का एडमिशन करवा दिया। उनके दोनों बच्चे असद और रानी ज़हीन और खूबसूरत थे। दोनों को ही इल्म हासिल करने का जुनून था। दोनों ही फर्मा बरदार और अच्छी आदत के मालिक थे। लेकिन उनकी बेटी रानी की बहुत सी आदतें अजीब व गरीब सी थीं। वो अक्सर उन्हें बड़ा गोश्त लाने का मुतालबा करती और जिस दिन वो ना ला पाते तो वो पूरे घर में तूफान बर्पा कर देती। तो वो उसकी ख्वाहिश की वजह से अक्सर 4-5 किलो गोश्त इकट्ठा ही महीने भर कर ले आते और उनकी जोजा आधा आधा किलो का पैकेट बनाकर फ्रिज में रख देती। एक दिन वो हैरान और परेशान सी फ्रिज खोलते हुए सैयद साहब से कहने लगी, मैंने यहाँ पर 8 पैकेट बनाए थे, जिसमें से अब सिर्फ 2 पैकेट बाकी बचे हैं। ये बाकी पैकेट कहाँ गए? तो सैयद साहब पहले तो उनकी बात सुनकर हैरान हुए और फिर फ्रीजर के पास आए तो देखा कि वाकई यहाँ पर 2 पैकेट ही पड़े हुए थे। वो हैरान तो हुए लेकिन फिर कुछ बोले नहीं और अगले दिन वो उस राज तक पहुंच गए। जब आधी रात को उन्होंने रानी को चोरी से बाहर निकलते देखा तो मारे तजस्सुस के वो भी उसके पीछे आए और ये देखकर हैरान रह गए। जब रानी को कच्चा गोश्त अपने दांतों से भंभोरते देखा तो पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि जो देख रहे हैं वो सच है तो उन्होंने अपने लब सी लिए और अपनी जोजा से इस बारे में एक लफ्ज भी ना कहा। लेकिन उसके बाद वो कभी सुकून से ना सो सके। दूसरा, उन्होंने रानी को झूले पर अक्सर बैठे हुए देखा और वो यहाँ बैठकर किसी से बातें भी करती थी। उन्होंने जब उसे उस झूले पर बैठने से रोका तो वो शदीद नाराजगी और गुस्से का इजहार करती और फिर अपनी मनमानी करते हुए उस झूले पर जाकर बैठ जाती। एक बार उनकी आधी रात को आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पीपल के दरख्त के नीचे रानी बैठी हुई है और उसके पास एक काली बिल्ली भी मौजूद है और वो उससे मुसलसल बातें कर रही है और वो बिल्ली भी आगे से उसको जवाब म्याऊं म्याऊं करती है। ये सब देखकर सैयद साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने रानी को आवाज देकर अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हुई है। तो उसने बड़े आराम से जवाब दिया कि वहां मेरी दोस्त आई हुई थी, मैंने उससे मिलने गई थी। तो सैयद साहब ने कहा कि तुम्हारी दोस्त? कौन दोस्त? तो उसने कहा ये जो बिल्ली है ये मेरी दोस्त है, लेकिन ये गूंगी है। मुझे लिख कर बताया कि गूंगे होने की वजह से कोई भी इससे शादी नहीं कर रहा। वो अफसुर्दगी से बोली, बाबा क्या गूंगे लोगों से शादी नहीं की जाती? वो मासूमियत से पूछने लगी। तो उन्होंने उसका सर अपने सीने से लगाया और फिक्रमंदी से बोले, गूंगे लोगों से भी शादी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? वो खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं उसे ये बात जरूर बताऊंगी। सैयद साहब के चेहरे पर एक लर्जा सा तारी हो गया। उनकी बेटी जवान हो रही थी और एक जवान होती बच्ची की ऐसी बातें सुनकर कौन उसे ब्याहेगा। उन्होंने कई बार उसके गले में तावीज डालने की कोशिश की, लेकिन वो खींच कर फेंक देती। स्कूल से भी उसकी रिपोर्ट्स अजीब व गरीब सुनने को मिल रही थी, जो सैयद साहब और उनकी जोजा के लिए परेशानी का बायस बनने लगी। वो हैरान थे कि ऐसा कुछ भी घर में नहीं होता, ना उसे दौरे पड़ते हैं और ना ही वो अपनी जगह पर बैठे बैठे बेमकसद हिलना शुरू कर देती है, ना ही घुटराकर अजीब व गरीब आवाजें निकालती है। शायद उसकी क्लास टीचर झूठ कहती हों। वो अक्सर इस पहलू से भी सोचने लगते। लेकिन टीचर के अलावा जब रानी की हम जमात लड़कियों ने भी इसी से मिलती जुलती बातें कहीं तो उनकी तशवीश बढ़ने लगी। जब एक दिन रानी के साथ लड़ाई करने वाली लड़की ने रानी को थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उसका हाथ फिजा में ही रुक गया। उस लड़की ने रानी के चेहरे की तरफ देखा और डर के 2 कदम पीछे हटी। वो बोलने ही लगी थी कि कलाई की तरफ से उसकी हड्डी टूट गई। तकलीफ की शिद्दत से वो चीखने लगी और उसके इर्द गिर्द खड़ी लड़कियों ने भी चीखना शुरू कर दिया। लड़की को फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया, जहां उसके बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उसके वालिदैन उसे स्कूल भेजने लगे तो उसने इनकार कर दिया और रोने लगी। जब वालिदैन ने तंग आकर वजह पूछी कि वो आखिर स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रही है, जबकि सालाना मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात भी होने वाले हैं, तो उसने कहा कि रानी की वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहती, क्योंकि रानी इंसान नहीं बल्कि जिनजादी है। उसकी बात सुनकर उसके वालिदैन बहुत हैरान हुए और वो स्कूल आए और ये बात प्रिंसिपल को बताई।
प्रिंसिपल ने रानी के वालिदैन को बुलाया और कहा कि जब आपकी बेटी को गुस्सा आता है तो कई बच्चे कहते हैं कि उसका चेहरा बदल जाता है और आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं। बच्चे शदीद डरने लगते हैं, इसलिए अब वो उसे मजीद स्कूल में पढ़ाने का रिस्क नहीं ले सकते। रानी के वालिदैन मिन्नत समाजत पर उतर आए, लेकिन प्रिंसिपल किसी तौर पर भी नहीं मान रही थी। वो दोनों चुपचाप उठकर घर आ गए तो देखा उनकी बेटी बड़ी बेफिक्री के साथ झूले पर बैठी हुई झूला झूल रही है। तो उसकी जोजा अपनी बेटी की तरफ देखकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। अल्लाह की बंदी, अल्लाह से रुजू कर, रोने से कब मसले हल होते हैं। वो अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, मैं एक जवान बेटी की माँ हूं सैयद साहब। मैं ये नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। मुझे उसकी पढ़ाई से ज्यादा इस बात का गम है कि कल हमने इसे ब्याहना भी है। हम तो वालिदैन हैं, इसके ऊपर चादर डालकर इसके ऐब ढांप लेंगे, लेकिन जमाना कब माफ करता है। आज स्कूल से निकाली है, कल खुदा न ख्वास्ता ससुराल वाले। वो बोलते बोलते रुक गई और फिर दोबारा रोने लगी। सैयद साहब के चेहरे पर भी तकलीफ के आसार नुमाया होने लगे और उन्होंने भी अफसुर्दगी के साथ अपना चेहरा झुका लिया। अचानक जोरदार कहके की आवाज आने लगी तो वो दोनों मियां बीवी चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो रानी हंस रही है। उन्होंने मतलाशी नजरों से दाएं बाएं देखा और फिर अचानक निगाह उठाकर ऊपर देखा तो उन्हें दूसरी मंजिल पर दीवार से टेक लगाए रानी खड़ी नजर आई, जो किसी बात पर हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। वो दोनों बौखला कर उठे और रानी को आवाजें देने लगे तो उसने ऊपर से नीचे अपने वालिदैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी अजनबियत थी। सैयद साहब और उनकी बीवी ने उसे देखकर एक झुरझुरी सी ली। फिर वो तेजी से नीचे उतरी तो सैयद साहब गहरी सोच में डूब गए। अम्मी, मेरी सहेली के रिश्तेदार यहां से जा रहे हैं और उनके बेटे ने उससे रिश्ता भी तोड़ लिया है। वो अपनी माँ की गोद में सर रखे अफसुर्दा लहजे में बोली। तो अंदर कमरे में दाखिल होते हुए सैयद साहब ठटके। मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा और खामोश हो गए। रिश्ता क्यों तोड़ लिया? माँ ने सवाल दागा। गूंगी जो है, तुम्हें कैसे पता चला? इशारों से बताया। मुझे उसके इशारे समझ में आते हैं ना। फिर वालिद की आमद महसूस करते हुए वो सर झुकाकर कमरे से निकल गई। वो दोनों चुप की जबान लिए अपनी अपनी सोचों में डूब गए। गहरी अंधेरी रात में रानी सहन के दरमियान खड़ी थी। उसके बाल लहलहा रहे थे, जबकि हवा चलने का नामो निशान भी न था। सैयद साहब कमरे से बाहर निकले और उसे पुकारा, लेकिन वो वैसे ही खड़ी रही। तो सैयद साहब बाहर निकलकर सहन में उसकी तरफ बढ़े और थोड़े से फासले पर जाकर रुक गए। रानी बच्चे, तुम इस वक्त यहां क्यों खड़ी हो? उन्होंने दोबारा पुकारा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ मुड़ी। जैसे ही उनकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो डर कर 2 कदम पीछे हट गए। रानी के चेहरे के खद्दोखाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हुए बिल्कुल ही उस अफरेत में ढल गए जिसे उन्होंने एक रात झूले पर बैठे हुए देखा था। उसने इंतहाई शोलेबाज नजरों से सैयद साहब की तरफ देखा। हम तो यहां से जा रहे हैं, लेकिन तेरी सबसे कीमती मताए हयात भी लेकर जाएंगे। और फिर वो काले धुएं में तब्दील होकर नजरों से ओझल हो गया। सैयद साहब के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उठकर बैठ गए। उनका पूरा जिस्म पसीने में भीग चुका था। वो फौरन रानी की चारपाई की तरफ गए और जब देखा कि वो तो पुरसुकून सो रही है तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। तो गोया वो ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों उनका दिल डर सा गया। उन्होंने अपनी जोजा को रानी का खास ख्याल रखने की ताकीद की और वो खुद भी रानी पर पढ़ पढ़ कर फूंकते रहे, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। एक दिन वो दुकान पर बैठे हुए थे कि उनकी जोजा का रोते हुए फोन आया कि फौरन घर पहुंचे। वो घर पहुंचे तो रानी को सहन के दरमियान गिरे हुए देखा और उनकी जोजा पागलों की तरह रोती जाती। उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सैयद साहब, मेरी रानी मर गई। वो उन्हें देखकर चीख कर बोली। उन्हें यकदम अपना ख्वाब याद आया तो वो दोनों हाथ सर पर रख कर रोने लगे। असद मदरसे से आ चुका था और उसने तदफीन की तमाम जिम्मेदारियां खुद निभाई, क्योंकि उसके वालिदैन शदीद सदमाती कैफियत में मुब्तला हो गए। असद ने एक फरमाबरदार बेटे का हक अदा करते हुए उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। यही वजह है कि वो जल्दी ही संभलने लगे। वालिद पहले की तरह दुकान पर जाते, जबकि वालिदा भी रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गईं। असद ने जब ऊपर की मंजिल पर बच्चों के लिए मदरसा खोलने का इरादा किया, उसके वालिदैन ने मुखालफत की, लेकिन वो डटा रहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है
ایک مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر اپنے روحانی اساتذہ کے حکم پر اس نے مدرسہ کھول لیا۔ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے اوپر کی دونوں منزلوں کو بہترین صاف کروایا، عرصہ دراز بند کھڑکیاں دروازے کھولے اور اذان کونے کونے میں جا کر دینا شروع کر دی۔ مسلسل اذان اور اللہ کے کلام پڑھنے سے وہاں بدبو ختم ہو گئی۔ ایک دن جب اپنی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اہل محلہ چونکے۔ اتنی خوبصورت آواز اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ سنی تھی۔ لوگ جوک در جوک مدرسے میں آنے لگے کہ دیکھیں تو صحیح کہ پڑھنے والا کون ہے۔ جب دیکھا کہ ایک نیلی آنکھوں والا سرخ و سفید رنگت والا لڑکا سر پر پگڑی باندھے آنکھیں موندے بہتے آنسوؤں کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے تو سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اگلے دن بھی اسی وقت اس نے دوبارہ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تو اہل محلہ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں سپارے دے کر اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور یوں صرف ایک لڑکے کی کوشش سے یہ ویران گھر اللہ کی عبادت سے آباد ہونے لگ گیا۔ ایک دن وہ بڑے جذب کے عالم میں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ اسے اپنے پاس کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ اس نے بغیر ڈرے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو اچانک اپنی گود میں اسے ایک رکا ملا جس پر لکھا تھا، یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اسد نے پراعتماد طریقے سے جواب دیا، اللہ کا کلام قرآن پاک۔ مجھے بھی پڑھاؤ، اس نے لکھ کر پھر سے اسے بھیجا۔ اس وقت میں کسی کو نہیں پڑھاتا، میں دن کو نہیں آ سکتی کیونکہ میں جن زادی ہوں۔ اب کی بار اسد نے آنکھیں پوری کھول کر اسے دیکھا۔ تم ہی رانی کی دوست تھی نا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر رانی کو کیوں نہ بچایا؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، وہ بہت ظالم تھے، مجھے بھی مار ڈالتے، اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، صرف ہمارا خاندان رہ گیا ہے۔ یہ بہت پیارا کلام ہے، کچھ مجھے بھی پڑھاؤ۔ اس نے لکھ کر رکا دیا تو اسد نے کہا، پڑھو، اور سورہ علق کی آیات تلاوت کرنے لگا۔ جو ہی اس نے سامنے رکھے قرآن کی طرف دیکھ کر سورہ علق کی آیات پڑھیں تو اس کی آواز لوٹ آئی۔ وہ خوشی سے اونچا اونچا پڑھنے لگی، میں بول سکتی ہوں۔ وہ خوشی سے چلائی، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اسد نے اسے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھنے والوں میں صرف جنزادی ہی شامل نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ اسد یہ لمحات ساری زندگی نہیں بھول سکا کہ اس کے جذبہ ایمانی نے اسے صرف اللہ کے سامنے کیا جھکایا کہ اس کے سامنے ایک خدائی خود بخود جھک گئی۔ اس کا اللہ پر ایمان مزید پختہ ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی فقط اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔